चले पर उम्मीद का है नशा। तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं, देख सफर में तेरे लिए। Hello and welcome to Telenor Free Hits by Wali Sports. I'm your host SN Iftikhar Nagi and I'm back again in the host's chair as Mehak Khokar had to go to Islamabad for some of her tennis commitments. Of course, she will be representing Pakistan in Sri Lanka in July, so best of luck to her from our side. We'll be talking about today's game, which is between Islamabad United and Karachi Kings at the Pindi Cricket Stadium in Rawalpindi. Of course, this is the last match of the Pindi leg, and it's the last match, last group match as well, because after this, the playoffs will begin after a day's gap in Lahore. To talk about this game and what happened last night, I have with me Ahmed Shahzad Bhai, our regular analyst. Ahmed Bhai, thank you so much for joining us again. Thank you. You look a bit tired today. Khairiyat? Well, I've been doing some work, Hmm. जिसकी वजह से. But Mehak, you're right about it. She's going to represent Pakistan very soon, and she's there preparing herself Yeah. in Islamabad. I think she's committed there. So we wish her all the best. She's been doing an amazing job. Is she coming back again? What I have heard is that she'll be here for the last two matches. Let's see उसको जो टेनिस फेडरेशन वाले हैं कब फारिग करते तो हैं. उन्हें यही चलता रहेगा. उधर इंतजार करते रहेंगे. Well, national duty comes first, and I think ये बड़े एक sort of एक बड़ा proud moment है for this Wali team कि हमारी एक टीम की member हैं. We already have an athlete and there's another athlete in our team जो कि पाकिस्तान को एक another sport में जाके represent कर रही She है. has been number one as well. Yeah. And she's really fit, mashallah. And she's saying that she's very committed this time around. Yeah. She's saying, she was telling me the other day, we were having a word about the Sri Lanka gig as well. I think I'm going to win. Inshallah. You'll see. I said, okay. She's very confident and all our best wishes is with her. Right. So, Ahmed Bhai, let's talk about what happened last night. Yeah. Lahore Qalandars rolled over Peshawar Zalmi, won the match by 26 runs. Of course, it was a real curtailed game, reduced to 13 overs. Let's talk right from the start. बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इन अ वे कि जो टॉस के ऊपर उनकी कॉल थी. ऑफ कोर्स 2 days ago जब उन्होंने अगेंस्ट कराची किंग्स व्हेन ही ऑप्टेड टू बैट, आपका उस वक्त ओपिनियन ये था कि प्रॉबेबली उन्होंने इसलिए बॉलिंग करने का पहले फैसला किया है. उसकी रीज़न ये है कि ही वांट्स कि उनके बॉलर थोड़े से कम रन्स पे रिस्ट्रिक्ट कर लें डिस्पाइट द कंडीशंस. अच्छा, T20 के अंदर एक हमने पैटर्न देखा है कि जो भी विनिंग कैप्टन है, टॉस जो भी कैप्टन जीता है, दे एक्चुअली गो फॉर चेजिंग, which was perfectly in line with what बाबर आजम did. अब कल रात को जब आपको पता है बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म आया है, उसके बाद अगेन बाबर आजम इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट. अगेन जो आपकी थिंकिंग है, जो ट्रेडिशनल क्रिकेट थिंकिंग है, वो यही है कि यू वांट, जब आपको पता है इस तरह से कोई मौसम की तरफ से कुछ आया हो, कोई अनकंट्रोलेबल फैक्टर प्ले कर रहा हो, तो यू वांट दी opposition to set the score for you. पहले वो एक दफ़ा बैटिंग कर लें, आपको पिच का आइडिया हो जाए. But still there was a lot of criticism on Babar Azam. Why did he elect to bowl? What do you think? वो पिछले मैच की वजह से शायद वो कुछ लोगों को इतना डेप्थ की पता नहीं होता चीज़ों का. जहाँ तक आखिरी मैच की उनका बॉलिंग करने का वो मामला था, बिल्कुल ठीक था. बिकॉज जब भी वेदर थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल होता है, यू वांट कि यार एक जो टारगेट है वो बोर्ड पे लगा हो, सेट हो, ताकि हम अपना जो चेज़ है उसके हिसाब से प्लान कर सकें. आई थिंक दैट वाज अ राइट कॉल. हाँ, उससे पहले वाला जो मैच था, यू सेड के ये एक फिनोमेना बन गया, इट्स अ नॉर्म के चेस करते हैं. नहीं, डेविड वार्नर पूरी दुनिया की क्रिकेट खेल रहा है. वो उसी टॉस पे जब बाबर आजम ने बॉलिंग की थी, उसके बाद जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा हमने बैटिंग करनी थी. सो इट्स नॉट अ फिनोमेना. आई नो माई प्लेयर्स, और क्योंकि खुद भी मैं बैट्समैन हूँ, ये सारी चीज़ें हमने भी कहीं ना कहीं की हैं. लेकिन उसके बाद विल मूव्ड ऑन. इतना पकड़ के नहीं रखी इन चीज़ों को, क्योंकि हमें लगा कि जब ये चीज़ का एहसास हो गया ना कि टीम ओवर पर्सनल माइलस्टोन्स, और तभी जो है ये सारी ये प्रेजिंग है ना, ये इन्हीं छोटी छोटी चीज़ें के साथ आती हैं. जब आप अपनी टीम के लिए चीज़ें कर रहे होते हैं ना, इतने 1001 फैक्टर्स हैं. ये तो कुछ फैक्टर्स हैं जो टीवी पे नज़र आते हैं. 1001 फैक्टर्स होते हैं जो जब लीडर होता है वो मैनेजमेंट के साथ बहुत चीज़ें कर रहा होता है, और वो सारे फैक्टर्स टीम के लिए होने चाहिए. जब आपके पर्सनल चीज़ें आ जाएंगी ना, उससे होता ये है कि मुझे फॉर एग्जांपल
एज अ बैटर मुझे बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। जब 200 सवा 200 की बात होती है, फिर फियर ऑफ फेलियर, जब आपकी फॉर्म ना लगी हो और आप अफोर्ड ना कर सकते हो एक और फेलियर, तो एज अ परफेक्ट रेसिपी ये होती है, आप टॉस जीत के बॉलिंग करते हैं एंड देन यू प्रे कि यार अगली टीम मारने जाए, क्योंकि आपकी भी तो वजह बॉलिंग करने की यही है ना कि आप मारना नहीं चाहते, रिस्क इन्वॉल्व है। तो अगली टीम को भी आप ये कहते हो कि हाँ यार हमारी बॉलिंग जो है ना, ऊपर से अगर 2 आउट कर दें, उनके मारने वाले हो जाएं, तो हम इनको 160 में पकड़ लें और फिर मैं अपनी गेम खेल सकूं। तो ये पीछे जो है ये फैक्टर होता है जो कि इनको कॉस्ट किया बिग टाइम, ना सिर्फ कराची के मैच में, उससे पहले भी ये होता रहा है। फिर देखें अगर पेशावर ज़ल्मी की, और जब एक टीम बॉटम पे आती है ना, देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स जो मिस होते हैं, लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स जो मिस होते हैं। आपकी क्वेश्चन खाली बाबर आजम से नहीं बनता, पूरी टीम से बनता है। yeah. साइम अयूब हैजंट डिलीवर एट ऑल, उससे एक्सपेक्टेशन थी, देन फ्यू विल से कि इंजरी से वापस आए, तो भाई ज़बरदस्ती तो किसी पे नहीं आए। ही इज़ रनिंग वेल, ही इज़ बॉलिंग वेल, और कोई 10 साल के लिए तो इंजरी से नहीं बाहर थे। उस पर ड्यू थी परफॉर्मेंस जो नहीं हुई। हारिस ने 2-3 मैचेस में पैचेस में अच्छी इनिंग खेली, गालिबन एक वही उनकी तरफ से लड़का लगा कि जो थोड़ा सा जो है खेला, लेकिन एंड में व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, स्पेशली आखिरी मैच में बड़े बुरे तरीके से सारे ये लोग आउट हुए। और बाबर की भी जो इंटेंशन थी आखिरी मैच के अंदर, आई थिंक दैट वाज माइंड ब्लोइंग। व्हाई? क्योंकि ऑलरेडी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, ठीक है, क्रिटिसिज्म हो रहा है और उन्हें पता है कि यार मारना है। तो पिछले मैच में वो मारते हुए आउट हुए, किसी ने कुछ नहीं कहा यार, मारते हुए हाई रिस्क आप क्रिकेट खेलते हो, आप आउट हो जाते हो। लेकिन आप पे क्रिटिसिज्म तब आता है जब आप इतने सीजन प्लेयर हो के आप एक टोटल चेस कर रहे हो और आपको आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। मतलब 14 की एवरेज छोड़, आप 12वें ओवर तक 13वें ओवर तक जब खेल रहे थे तो 9 की एवरेज से पेशावर ज़ल्मी स्कोर कर रहा था और पीछे 13 की एवरेज पड़ी हुई थी। अब आप व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्रेट प्लेयर्स, ग्रेट लीडर्स, स्टीव वॉ, व्हाट मेक्स हिम द ग्रेट लीडर, वो उनकी कैलकुलेशंस वर ब्रिलियंट। वो मैच का क्रैक डाउन करके जो अपनी टीम को प्लान देते थे, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। सेम एज हैपेंड, माइकल वॉन कोई इतना लेविशिंग प्लेयर नहीं था, लेकिन उसकी कैलकुलेशंस बहुत ज़बरदस्त थी। एंड देन सेम गोज विद ग्राहम स्मिथ। ग्राहम स्मिथ को तब कप्तान बनाया जब जैक कैलिस जैसे प्लेयर भी टीम में मौजूद थे। लेकिन कोई वजह देखते हैं जब आप लीडर चूज करते हैं जो पाकिस्तान में नहीं देखी जाती है। इसी तरह आई कांट बाय दिस एट ऑल के पाकिस्तान का कप्तान खेल रहा हो, एक टीम का कप्तान खेल रहा हो, और फॉर एग्जाम्पल 237 करवा दिए बॉलर्स ने, वो भी मेरी टीम के बॉलर्स है ना, ये हम यही कहते हैं ना हम फैमिली है। तो यहाँ पे फैमिली क्यों नहीं बनते, यहाँ पे क्यों उनको बिट्रे कर देते हो आप? तो अगर उन्होंने करवा दिए 237, जो कि पहली दफ़ा नहीं हुआ पिंडी में, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यार आप खेल रहे हो, आप 15-16 ओवर तक खेल गए हो और अभी भी 50 रन पड़े हुए हैं? दैट वाज अ बैड कैलकुलेशन। आई वुड रादर गेट आउट, यू नो, अदर देन कि आखिरी 5 ओवरों में या 4 ओवरों में अपनी टीम के लिए इतना स्कोर छोड़ दूं कि जो हो ही ना सके। आप देखें हुसैन तलत वगैरह नीचे पड़े हुए थे, उन लोगों की तो बेचारों की बारी नहीं आई कि वो कुछ कर सके। सो आई थिंक दैट वाज द रीजन कि जहाँ पे उनको क्रिटिसिज्म का, ना सिर्फ पिछले मैच में, थ्रू आउट पाकिस्तान की तरफ से भी जब ये परफॉर्मेंस करते हैं तो ये मैच को कैलकुलेट ही ठीक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये दे एंड अप लूजिंग द मोस्ट व्हेनेवर बाबर आजम स्कोर रन्स। Well, Ahmed, मैंने आपको इस वजह से बीच में नहीं रोका because this is the last time when Talking you'll about get Babar. when you'll get so much time to talk about Babar, because of course Peshawar Zalmi have now been eliminated and they can't, Ahmed Shahzad cannot speak about him for the next week or so. And how about Rizwan? लेकिन हम इनको लेके आते रहेंगे, इनकी Well, मिसालें देंगे लोगों को। and we will try our best कि उनकी मसाले ना हम यहाँ पे फौरन पॉज लगा दिया करें जब भी अहमद उनकी तरफ नहीं, जाए। लेकिन ना कि यार देखो ये बातें अगर तुम्हें गलत है तो आप ही बता दो Yeah. कि यार ये गलत है। मैं तो सिर्फ जो हमें पता है वो बता रहे हैं कि यार ऐसा नहीं है कि गलती अहमद शहजाद की और नागी पे डल जाए। अहमद की गलती अहमद पे ही डलनी चाहिए, बस इतना ही करते हैं हम यहाँ बैठ के। Right. So, I mean, as we are talking about last night's game, let's have a look at the scorecard. तो थोड़ा सा match summary देखते हैं to understand कि किस तरह से match unfold हुआ. So, it was a great start for Lahore Qalandars. Fakhar Zaman scoring 60 of 36 and Mohammad Naeem, another sensational player coming from Lahore Qalandars rank, scored 22 of 10. फिर बहुत मज़ेदार contributions बीच में middle order में देखने को मिली, जिस तरह आसिफ अली ने first 2 बॉलों पे छक्का लगाया, finished with 18 of 6 balls. Kusal Pereira scored 17 of 8 balls. Danial bowled really well last night. 2 overs उन्होंने ऐसे कराए, एक में 5 रन आए, एक में 7 रन आए। ऑफ कोर्स मिडल ओवर जो इनका था इट वेंट अ बिट एक्सपेंसिव। फिर उसके बाद अगर पेशावर ज़ल्मी का हम रिप्लाई देखें, सलमान मिर्ज़ा, ओह what amazing bowler he has turned out to be, playing his first match of the HBL PSL X,
finishing off with 4 for 31, pick of the bowlers, proper annihilation and destruction of Peshawar Zalmi's batting unit. Of course, we'll talk more about Salman Mirza as we go on. But एक important एक फैक्टर देखने को मिला लास्ट नाइट में, ऑफ कोर्स मैं अहमद से इसके बारे में बात करना चाहूँगा, विच वॉज अबाउट फ़खर जमान. अगर हमने फ़खर जमान देखें, ऑफ कोर्स जो इनका टोटल स्कोर था विच वॉज 60 ऑफ 36 बॉल्स, इट लुक्स रियली नाइस ऑन द स्कोर कार्ड. अगर इन्होंने स्टार्ट बड़ा कमाल लिया था, 21 बॉल्स पे 45 किया, बट लेकिन जो इनकी लास्ट 15 बॉल्स थी उस पर इन्होंने 15 रन ही किए. और दूसरे एंड से क्योंकि जो बाकी बैट्समैन आ रहे थे वो कंट्रीब्यूट करते जा रहे थे तो स्कोर लगता जा रहा था. बट अहमद, ये कैसे होता है कि एकदम से यू स्टार्ट ऑफ वेल बट देन यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग इन द मिडल? बस उनको स्ट्राइक इतना नहीं मिला. ठीक, शुरू में एज यू सेड के बड़ा ज़बरदस्त ना उसने स्टार्ट दिया, इम्पैक्ट डाला. ना सिर्फ फ़खर ने, नईम ने 2 इनिंग उसने पहले भी अच्छी खेली हैं, और कल भी जो हम बात करते हैं छोटे छोटे कैमियोस की जो टीम के काम आए, नईम ने कल वो करके दिया. जहाँ तक आप फ़खर जमान का पूछ रहे हैं, उसके बाद उनको स्ट्राइक उस तरह मिली नहीं. जब वो जा रहे थे ना, जब आप एक फ्लो के अंदर होते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि बस अब स्ट्राइक मेरे पास ही रहे. वो स्ट्राइक उनसे फिर जाती रही और फिर वो ट्राई कर रहे थे. आई थिंक क्रेडिट यहाँ पे जाता है अहमद दानियाल को भी, ठीक है, अली रजा को भी. उन्होंने ज़बरदस्त उनको पकड़ के रखा, उसको वो फ्रीबीज नहीं दे रहे थे और इन लेंथ्स पे बॉल कर रहे थे. या फ़खर जमान कहाँ अच्छा है, या तो आप उसको विथ देंगे, ठीक है, या तो आप उसको शॉर्ट बॉल करेंगे इस हाइट पे. तो उनको हुआ ये कि जो बॉल हो रहे थे वो विकेट लेंथ पे हो रहे थे. फ़खर जमान एक जगह पे ज़रूर फंसते हैं क्योंकि क्रॉस बैटेड खेलते हैं. जब उनको स्टंप्स के अंदर विकेट हाइट पे बॉल होता है, वहाँ पे वो कोशिश करते हैं घुमाएं तो इनसाइड एज वगैरह लगता है. और कल बहुत सारे बॉल इस तरह हुए कि वो उनका इंटेंट बिल्कुल था कि मार रहे थे लेकिन लग नहीं रहे थे. देखिए, एज लॉन्ग एज आपका इंटेंट है ना हाई रिस्क, सब कुछ नज़र आ रहा है, तो आप भी इंसान हैं. कभी आपसे लगती हैं, कभी आपसे नहीं लगती हैं, लेकिन इरादा और इंटेंट सब नज़र आ जाता है. फॉर इनफ कई लोग होते हैं जिनका इरादा ही नज़र नहीं आता. सो दैट वाज अ डिफरेंट. फ़खर जमान की आप बात कर रहे हैं, अच्छे स्टार्ट के बाद उनका जो मोमेंटम टूटा, उन्हें उस तरह स्ट्राइक नहीं मिला और ऑपोजिशन ने उनको अच्छे एरियाज पे बॉल किया. बट यहाँ पे फिर हम बार बार कहते हैं, देखें एक कड़ी से दूसरी निकलती है और ये क्रिकेट का इस तरह की बात है कि हम पूरी रात भी जा सकते हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि एंकर नहीं चाहिए अब, क्योंकि फ़खर जमान भी इंसान है. एक पीरियड आएगा जब वो स्लो डाउन हो जाएगा, देन यू नीड अनदर बैट्समैन ऑन द अदर एंड हु कैन डू द सेम थिंग. अगर वहां से भी सिंगलें हो रही होंगी, फ़खर जमान भी नहीं करेगा तो किस तरह टीम का स्कोर चलेगा. इसलिए वो जो एंकर स्टोरी थी आउटडेटेड हो गई हुई है. ये तब तक थी जब तक स्कोर 140 160 के थे. जैसी 200 वाली बात आ गई है, अब आपको दोनों एंड पे इस तरह के चाहिए, क्योंकि अगर फ़खर या नागी खेल रहे फॉर एग्जाम्पल नहीं लग रही, सो यू वांट दी अदर बैटर कि वो जाए. और यही कल होता रहा कि उनका स्कोर जो मोमेंटम था फ़खर के 15 बॉलों पे 15 करने के बावजूद भी उस टाइम पे रुका नहीं. हाँ, एंड में बड़ा ज़बरदस्त पुल बैक किया पेशावर ज़ल्मी ने और अहमद दानियाल को क्रेडिट जाता है. देखिए, पेशावर ज़ल्मी हैज़ नोबडी बट देमसेल्फ टू ब्लेम. इनके पास सारे रिसोर्सेज थे यार, बड़ी ज़बरदस्त टीम थी, लेकिन इनकी इतनी बड़ी बड़ी मैनेजमेंट बैठी हुई है. इंज़मामुल हक उधर बैठा हुआ है, मुश्ताक अहमद उधर बैठे हुए हैं, हाजी अकरम उधर बैठे हुए हैं. ये प्लेइंग 11 या जो मैचेस या जो टॉस जीत के बॉलिंग करना या एक बॉलर शॉट जाना, कॉम्बिनेशन, ये सारा इनके हाथ में था. तो अहमद भाई, यू नो सिंस यू हैव मेंशन्ड पेशावर ज़ल्मी, तो उसके अंदर एक और बहुत बड़ा एलिमेंट लास्ट नाइट को इनकी डिफीट में उसने रोल प्ले किया, कैचेस ड्रॉप. आप 4 to 5 कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, ये नहीं कि वो इतने मुश्किल थे, प्रिटी सिंपल कैचेस जो आप बाउंड्रीज के ऊपर छोड़ रहे हैं. फ़खर के 2 कैचेस छूटे, उसके फ़खर के 3 आप कह रहे हैं, और 3 छूटे फ़खर के कैचेस पे. उसके बाद हमने विकेट कीपिंग में देखा, वहाँ पे भी लैप्सेस थे. मतलब क्या ऐसी चीज़ होती है, एंड ऑफ कोर्स जब आप पाकिस्तान टीम में थे, पाकिस्तान टीम में भी ये बहुत ज़्यादा फील्डिंग लैप्सेस होते थे. ये क्या वजह होती है कि एकदम से फील्ड में लगता है कि टीम के पास कुछ है ही नहीं, दे हैव फॉरगॉटन द बेसिक्स? पाकिस्तान टीम में देखिए, ऐसा नहीं होता कि रेगुलर बेसिस पे होता था, कभी कभार कैचेस छूट जाते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम. बड़ी बड़ी टीमें छोड़ देती हैं. हमारी फिटनेस का जो है वो कल्चर तो बिल्कुल इसी तरह का है, एंड फील्डिंग का बहुत डायरेक्ट ताल्लुक है फिटनेस के अंदर से. जहाँ तक पेशावर ज़ल्मी या मुल्तान सुल्तान की बात करेंगे ना, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, जब आप किसी भी टूर्नामेंट के अंदर एंटर करते हैं ना, सबसे बड़ा रोल होता है लीडर का एक टीम को एक जेल बनाना, एक करना. तो जब आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस या पोस्ट मैच सेरेमनी में जाके उनको सोल्ड आउट कर रहे हैं, कभी बॉलरों के पे डाल रहे हैं, कभी आप बैट्समैनों पे डाल रहे हैं, कभी आप फील्डरों पे डाल रहे हैं, वो टीम सब सुन रही है. सोशल मीडिया का दौर है, वो आपके पीछे खड़ी नहीं है.
ये दोनों टीमों की, ये कप्तानों की टीमें इनके पीछे खड़ी नहीं थी, इनके आधे से ज्यादा प्लेयर इनके साथ खड़े ही नहीं थे। तो कैचेस ड्रॉप तभी होते हैं जब इंसान का इंटरेस्ट उस तरह नहीं होता। तो यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी के साथ मुझे ये फीलिंग आई है कि इनका एक टीम बन के जीतने का इंटरेस्ट ही नहीं था। दैट इज वाई वो एक कैजुअल अप्रोच के साथ जो है ना, फिर डरते हैं लोग, क्योंकि जब आप डाली जाएंगे, जब तक आप मुझे थोड़ा बहुत सेव कर रहे हैं, जिस तरह आप अपने फ्रेंड्स को करते रहे, इसी तरह बाकियों को भी फ्रेंड समझे। फिर जब आप इस चीज को हाईलाइट करने लग जाते हैं ना पूरी दुनिया के सामने, और प्रेशर आता है कि यार हम कैचेस की वजह से हार रहे हैं। अब इसको आपने इतना हवा बना दिया है, प्रिपरेशन का टाइम है नहीं, ठीक है, और आपने पूरी दुनिया को ये वजह बता दी है, तो ऑब्वियसली कैचेस तो बाबर ने भी छोड़े। लेकिन अहमद भाई, अगेन everything can't be because of Babar Azam. I mean, ठीक है, आपके पास कैच आ रहा है and you are under pressure. Cricket is a tough game. आपको mentally test करती है, आप इतने बड़े स्टेज पे खेल रहे हो. That is why it is the survival of the fittest. कम से कम आपके पास जो कैच आ रहा है वो तो पकड़ो। जी, तो absolutely agree with you. Everything cannot be Babar Azam. Yeah. We've said that last night too. But you're a leader. ठीक है, टीम को जेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके, ऑफ कोर्स, राइट कॉम्बिनेशन खिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके, बॉलर पूरे डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, टॉस जीत के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, राइट, ओपनर कौन जाएगा शुरू से ही ये टीम के बेनिफिट में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, कौन किस तरह खेलेगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। तो ये 6-7 जो मेन चीज़ें थी, और फिर प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। तो ये 7 चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो एक कप्तान का डायरेक्ट रोल होता है। आपको लगता है पेशावर ज़ल्मी ने ये 7 चीज़ें ठीक की हैं? ये वो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने खुद चेंजिंग्स की हैं। ओपनर कोई और था, बाद में इनको लगा नहीं इट्स नॉट वर्किंग, बदल लिया, ठीक है। एक बॉलर शॉर्ट था, लास्ट नाइट वो बॉलर भी पूरा किया, ठीक है। टॉस जीत के बॉलिंग करते रहे, किस वजह से आपको बताया, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी इनके हाथ के अंदर थी। क्या कॉम्बिनेशन अंदर खेलता रहा, अहमद दानियाल पहले कहाँ था, सुफियान मुकीम अभी भी बाहर बैठा हुआ था, ओवन को आपने 8वें नंबर पे जाया किया, मेहरान मुमताज उनके पास बाहर, राइट कॉम्बिनेशन किसने नहीं कराया, डायरेक्ट रोल कप्तान का। सो ब्रो, नॉट एवरीथिंग इज अ लीडर, बट माइंड यू क्रिकेट के अंदर आई हैव सर्व्ड माय लाइफ, 90-92% थिंग्स ऑफ अ लीडर एंड द सपोर्ट स्टाफ कैन ओनली देयर टू सपोर्ट यू, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं कर सकते वो, उनके हाथ में कुछ नहीं है। आई एम एक्चुअली अ बिट ग्लैड कि हमने ये जब पूरा वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस वक्त शो नहीं किया, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में भी कहीं ना कहीं बाबर आजम जरूर आ जाता हमारी डिस्कशन में भी आ जाता अगर उसका कोई रोल होता। अब ऐसा तो नहीं है कि मुल्तान सुल्तान की हार की वजह मैं बाबर आजम को बता दूं, और ऐसा भी नहीं है कि पेशावर ज़ल्मी की हार की वजह सिर्फ बाबर आजम है, बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड, जब पाकिस्तान टीम हार रही थी बाबर आजम के हाथ में सब कुछ था, ऑफ कोर्स, ठीक है, सारा कुछ था। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी के डिसीजन जो शॉर्ट हो रहे हैं वो बाबर आजम डायरेक्टली जो है उसमें इन्फ्लुएंस्ड हैं, और नजर आ रही हैं हमें सेम चीजें, वही जो पाकिस्तान के लिए होती नहीं है वही पेशावर ज़ल्मी के साथ हो रही हैं। एंड देन आप देखिए हाजी अकरम का लास्ट नाइट की अगर आपने प्री सुनी होगी, उन्होंने क्या किया पोस्ट मैच सेरेमनी के आके, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम फॉर्म के अंदर नहीं है जिसका हमें नुकसान हुआ है। सो दैट्स अबाउट इट। हम बाबर आजम की बात इसलिए करते हैं बिकॉज बाबर आजम को आप ही ने तो हवा बनाया है, तो अब जिस चीज का नुकसान हो रहा है उसको थोड़ा सा आपने न्यूट्रलाइज भी तो करना है। आई स्टिल बिलीव that he's a really good player. All he needs to do is just go and play domestic cricket and get those things back. जो मोजो मिस है आपका वो वापस लेके आइए। प्लस अगर आपने T20 खेलनी है, डेवलप फ्यू शॉट्स, और शॉट्स डेवलप कीजिए, छोटी लेके आइए, स्वीप मारना सीखिए, सामने छिक्का या छिक्का नहीं तो चौका मारना सीखिए, हाई रिस्क क्रिकेट सीखिए। और मुझे ये लगता है वनडे में आज भी आपके बेस्ट प्लेयर हैं, वनडे में तो इसमें शक नहीं है। T20 और टेस्ट आपके सामने परफॉर्मेंसेज हैं, और फिर जब बात ही बाबर आजम का क्वेश्चन आप करेंगे तो जवाब भी आपको मैं उसी तरह दूंगा। हाँ, मुझे ये लगता है कि बाबर आजम सोली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनके साथ मैनेजमेंट ज़रूर है इन्वॉल्व, इंजमामुल हक हैं, ठीक है, हाजी अकरम है, मुश्ताक अहमद साहब वहाँ मौजूद हैं। इन सब के होते हुए इंजमामुल हक साहब कोई तोड़ नहीं निकाल सके बाबर आजम की फॉर्म का एज सच, ठीक है, कोई तोड़ नहीं निकाल सके साइम अयूब की फॉर्म का एज सच। पुअर शॉट सिलेक्शन हमें देखने को मिली। स्पिन बॉलिंग जो थी आपके सामने, मुश्ताक भाई जो वहाँ बैठे थे उन्होंने बैक ही नहीं किया कोई सुफियान मुकीम को। और फिर एज ए बॉलिंग कोच आप किस तरह एक बॉलर शॉट जा रहे हैं, आप तो हमें बताया करते थे कि बॉलिंग पूरी होनी चाहिए। सो कुछ रोल समझ नहीं आ रहे किसी के भी। ग्रांटेडली जब आप चीजें लेते हैं, देन देयर आर फ्यू हु लव्स क्रिकेट, ऑल वी कैन डू इज जस्ट शेयर आवर एक्सपीरियंस विद यू, वी आर नॉट प्लेइंग द थिंग वी आर डूइंग। हाँ, हमारा ब्रेड एंड बटर तो बिल्कुल है, but at the same time और भी बड़े तरीके पैसे कमाने के। why only this field? because I just want the betterment of Pakistan cricket, that's all I want. I don't want to play anymore. Right. So
of course, we all want Babar Azam to pick up form. He has been a great talent for Pakistan. He has done a lot. बहुत उनकी performances हैं for Pakistan, and of course, every Pakistan cricket follower wants him to be where he was a couple of years ago. But of course, अगर एक player आपके senior player की form नहीं थी, there was a youngster last night who impressed a lot. Salman Mirza, 31-year-old. 2021 के अंदर उन्होंने अपना डेब्यू किया right from the start. Of course, Saim Ayub getting hit wicket, which was quite odd for a player like Saim Ayub. Then Haris playing around the line. Max Bryant, oh, what a great delivery that was, moved just out. और फिर उसके बाद अहमद दानियाल, who was looking in good form, got his wicket. काफ़ी मज़ेदार बॉलिंग थी सलमान मिर्ज़ा की. ज़्यादा इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, 6 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, 3 इनके लिस्ट ए के मैचेस हैं, 20 T20s हैं. जिम्बाब्वे में इन्होंने एक पूरा फर्स्ट क्लास का सीज़न खेला हुआ है. काफ़ी मज़ेदार टैलेंट देखने को मिले हमें कल रात को. कल के मैच में तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है. उससे पहले जो मैच खेले थे गालिबन पेशावर के अगेंस्ट ही खेले थे, इतनी तो खास बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन 150 बहुत वेरी मच अचीवेबल स्कोर था. आई थिंक कि ये पेशावर ज़ल्मी को चेस करना चाहिए था, एंड दे प्लेइंग बैटिंग हैवी. ने टॉप 4 पे बड़ा रिलाई करते हैं, और इसीलिए उन्होंने वो टीम भी बनाई थी जिसमें उनके आगे जो खड़ा हो गया वो ये हमारा प्लेयर हो गया जो यंगस्टर है. और वो यंगस्टर्स हैं, देखें यार ये कौन है, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ही है ना, पाकिस्तान के डोमेस्टिक से ही आ रहे हैं, पाकिस्तान ही प्रोड्यूस कर रहा है. तो फिर जब ये आपको पता है कि सिर्फ ये भी लोगों को मनाने के लिए हमने कितनी बातें सुनी है, कि लोगों को सिर्फ ये यकीन दिलाने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है, सिर्फ आपने उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, अपॉर्चुनिटीज़ दिल से प्रोवाइड करनी है. जिस तरह आप अपने फ्रेंड्स को, अभी तक तो लोग ये भी नहीं मान रहे थे, पाकिस्तान के सीनियर एक्स प्लेयर्स, करंट प्लेयर कोई नहीं माना, और कोई है नहीं जी इसलिए ये खेलेंगे, हमने तो इसकी भी फाइट की है. अब इस तरह के प्लेयर्स जब आके इस तरह के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस करते हैं, दिल से खुशी होती है, क्योंकि लगता है, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबॉडी इज रेडी फॉर द क्रिकेट गेम. अब ये इसने पोटेंशियल शो किया. व्हाट इज नेक्स्ट ये है कि इनको आप अपने अम्ब्रेला के अंदर लेके आएंगे. कोई है आपका अम्ब्रेला, कोई सिस्टम चल रहा है जहाँ पे जो है ना कोचिंग प्रोफेशनल स्टाफ हो, जिसको सारे बायो मैकेनिक्स का पता हो, जिसको पता हो कि फास्ट बॉलिंग है क्या और इम्प्रूव कैसे होगी, पेस कैसे जनरेट करनी है, क्या आर्मरीज क्या डालनी है, ये सारा कोई है. इस तरह नहीं है ना आपके सिस्टम. दुनिया में ऐसे होते हैं कि इस तरह के सिस्टम मौजूद हैं. जब किसी को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं यंगस्टर को, और वो पोटेंशियल शो करता है, तो वो डायरेक्ट आपकी अम्ब्रेला में आ जाता है, वहाँ पे उस पर काम होता है. उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, पाकिस्तान ए के टूर्स होते हैं, अंडर 19 कुछ भी नहीं हो रहा पाकिस्तान का. सो इसीलिए इतना टैलेंट वेस्ट हुआ है. पीछे तो आपने कुछ कराया नहीं. जब तो ये आपकी लॉट खेल रही थी, इन्होंने तो सारे ए के टूर बंद करा दिए थे ताकि कोई प्लेयर निकल के ही ना आए. अब आपको कई चीज़ों का पता है, पीसीबी में रह के कई का नहीं पता. सो वी नो लॉट मोर कि क्या क्या होता है, किस किस तरह किसी एक टैलेंट लेके आया जाता है, क्यों लेके आया जाता है, किसकी हाइप बनाई जाती है, और जब कोई लाना ही ना आए तो वो टैप ही बंद कर दिया जाता है ताकि कोई आए ही ना. सो दे आर लॉट गोइंग ऑन. ऑल आई एम सेइंग इज खेले यार, जो मर्जी खेले पाकिस्तान की तरफ से. ये भी तो बच्चे हैं, डोंट से कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट है. साहिबजादा फरहान को आप टैलेंट नहीं मानते हैं, आप मोहम्मद हारिस को टैलेंट नहीं मानते थे, आप साइम अयूब को टैलेंट नहीं मानते थे, आप हसन नवाज को टैलेंट नहीं मानते हैं, आप जो है ना ये यासिर, वो जो मुल्तान सुल्तान का ओपनर है, आप उसको टैलेंट नहीं मानते हैं, आप माँ सदाकत को टैलेंट नहीं मानते हैं, आप सुफियान मुकीम को, फैसल अकरम को टैलेंट नहीं मानते हैं, आप अली रजा को टैलेंट नहीं मानते हैं. अब एक और भी आके खड़ा हो गया, तो ये कौन है? अगर टैलेंटेड प्लेयर्स नहीं है, देन हाउ कम दे आर द वन हु इज परफॉर्मिंग बेटर देन दोज हु प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5 years? Right. It's a simple question. So it's gonna be pink match because आज जो PCB है, it's gonna be using this platform of the HBL PSL to create awareness about breast cancer. Of course, it is एक ऐसी ये बीमारी है जो तकरीबन आप देखें इसने हर ख़ानदान को ही पाकिस्तान में अफेक्ट किया. इनफैक्ट just last week a very close friend of mine lost his mother. So it's something जिसके बारे में awareness create करना बहुत ज़रूरी है. और PCB ने आज बहुत ही कमाल एक initiative launch किया है, which I want to tell to the audience, and I would really like कि अगर आप अपने families और loved ones को भी ये बताएं. आज के मैच की जिन जिन के पास भी टिकट्स हैं, उन सब ख़वातीन के लिए फ्री स्क्रीनिंग और एग्ज़ामिनेशन जो है आज से लेके अगले 30 डेज़ तक रावलपिंडी के होली फैमिली बेनज़ीर भुट्टो एंड रावलपिंडी टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर फ्री उनको स्क्रीनिंग और एग्जामिनेशन प्रोवाइड की जाएगी. सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल द वुमेन, जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर टू डू गो, अपने आप को स्क्रीन कराएं, एग्जामिन कराएं, ताकि खुदा ना खास्ता का कोई एक ऐसी चीज़ है सो आप उससे जल्द बाहर निकल सकें.
Well, coming back to the Islamabad United and Karachi Kings contest today, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है. दोनों टीम्स क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुकी हैं फॉर द प्लेऑफ्स, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो टॉप 2 में ख़त्म कर सकें. अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड आज का मैच जीतती है और तकरीबन 50 रन्स के मार्जिन से जीतती है, तो वो कराची किंग्स की पोजीशन ले लेंगी, नंबर 2 पे चले जाएंगे. ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 पॉइंट्स हैं फ्रॉम 9 गेम्स. कराची किंग्स ऑलरेडी कंफर्टेबली प्लेस्ड एट 12. लेकिन ये सिर्फ नेट रन रेट का मामला है, जो कि थोड़ा सा अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड इफ़ दे कम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग एंड इफ़ दे आर एबल टू पोस्ट अ गुड टोटल और उसको फिर वो 50 रन्स के मार्जिन से डिफेंड कर सकते हैं, दे विल बी टेकिंग नंबर 2 स्पॉट. अगर हम हेड टू हेड की बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है दे आर प्रिटी वेल अहेड ऑफ कराची किंग्स, क्योंकि अभी तक इनके दरमियान अराउंड 23 मैचेस हुए हैं, जिसके अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 17 जीते हैं. और इस सीज़न में भी जो इन्होंने पहले खेला था मैच, शादाब खान उसके अंदर प्लेयर ऑफ द मैच थे, टेकिंग 2 for 17 एंड स्कोरिंग 47 रन्स. एंड ऑफ कोर्स शादाब की हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि शादाब खान हैज़ रिकवर्ड. आई स्पोक टू द इस्लामाबाद यूनाइटेड management earlier in the day and they confirmed to me that he is available for today's game. So एक जो vital cog missing था इस्लामाबाद यूनाइटेड की playing 11 के अंदर, वो भी पूरा हो जाएगा. बट अगर हम पहले नॉर्मली तो हम बात करते हैं व्हाट्स गोना हैपन ऑन द फील्ड, पर आज एक डगआउट के अंदर भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर हो गए फॉर पाकिस्तान. माइक हैसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के डगआउट के अंदर होंगे. दिस विल बी हिज फर्स्ट मैच जब से वो पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच अनाउंस हुए हैं. सो अ लॉट ऑफ आइज विल बी ऑन हिम टुडे एंड फॉर द रेस्ट ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड्स जर्नी. अहमद शहजाद, बताइएगा ज़रा माइक हैसन के लिए, या इट विल बी जस्ट लाइक नाउ ही इज़ प्लेइंग अ मैच? नहीं, पाकिस्तान जस्ट पाकिस्तान थिंग्स नहीं देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर के आपका पाकिस्तान का कोच जो है आपकी लीग के साथ एसोसिएट होगा. आप नहीं देखते क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं. राइट. बट यहाँ पे साया कंपनी जो है ना, अंडर द कारपेट निकल गया, वो केस का पता नहीं चला क्या बना. तो ये फिर पाकिस्तान के लिए अब छोटी छोटी चीज़ें हैं. आई विश कि वो पाकिस्तान के लिए वो कर सकें जो पाकिस्तान उनसे चाह रहा है करना. बट जब आप किसी फ्रेंचाइज के साथ 3-4 साल से एसोसिएटेड होते हैं, आपकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग्स बन जाती हैं. प्लस वहाँ की जो मैनेजमेंट होती है लोकल, वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड होती है लोकल मार्केट के बारे में, ठीक है, आपके ऊपर, और आप उनकी बोली बोलते हुए नज़र आते हैं. होपफुली ऐसा ना हो. होपफुली वो पाकिस्तान के बारे में सोचें. होपफुली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग हैं वो उनको एक पैथवे दें कि ओके दिस इज़ द राइट पैथवे, वी वांट यू टू बिल्ड आवर टीम, वी वांट यू टू बिल्ड दीज यंगस्टर्स. ये 20 प्लेयर्स हैं हमारे, 25 प्लेयर्स हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर है. अब आपने इनको जो है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, जो कॉन्फिडेंस देना है, जो पूरी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, इनके साथ करना है. होपफुली वो एक स्टेप बैक ना लें. होपफुली वो वही ना करें जो ज़का अशरफ के जाने के बाद हुआ, जो नजम सेठी के जाने के बाद हुआ, या जो आगे, मतलब कि होपफुली पाकिस्तान की क्रिकेट आगे की तरफ बढ़े. एंड दिस all eyes will be on Islamabad United, not because Mike Hassan only. Shadab is also coming back. He got injured. Hopefully he gets better, is fit. और उनका ना खेलने से कहीं ना कहीं लीडरशिप के अंदर जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्योंकि बड़े देर से वो कैप्टन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो वो है, उनको पता है अपनी टीम का कि किससे कब कहाँ काम लेना है. बड़ा फ़र्क पड़ता है. एक तो वो वापस आ रहे हैं, ऊपर से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी इस्लामाबाद के लिए बिकॉज दे हैव लॉस्ट मिजरेबली. अच्छे स्टार्ट के बाद 6 मैचेस हार के फिर कुछ फोर्स चेंजिंग करनी पड़ी, कुछ अल्लाह की तरफ से इनको आ गई है, जिसके बाद आखिरी 3 मैच दे वर प्लेइंग टेरेबल क्रिकेट. तो मेरे ख्याल से ये जो ब्रेक आया है बीच में, इसमें ये लोग बैठे होंगे, इन्होंने राइट कॉम्बिनेशन के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में ब्रीफली बात की होगी विद देयर प्लेयर्स एंड द मैनेजमेंट एंड द कैप्टन ऑल टुगेदर, एंड दे कैन प्रोवाइड द क्रिकेट विद पाकिस्तान की आवाम जो इनसे इस्लामाबाद यूनाइटेड से एक्सपेक्ट करती है. एक अच्छा मैच देखने को ज़रूर मिलेगा. लेकिन आखिरी 2 परफॉर्मेंसेस जो देखें दोनों टीमों की, तो पेशावर कराची का जो पल रहा है वो थोड़ा सा एक एज ज़रूर हासिल है, बिकॉज इवन दो उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की. आई थिंक कराची ने पिछले मैच के अंदर जो पेशावर के साथ था बहुत ऑर्डिनरी और गंदी बॉलिंग की है, और वो डेविड वार्नर के चेहरे से आपको नज़र आ रहा था. कैचेस वो छोड़ रहे थे, बॉलिंग वो जो है ना, टारगेट बड़ा बड़ा मैंने आपको पहले भी बोला है, अच्छे पिचेस के ऊपर जो मार्जिन ऑफ एरर हो जाता है ना बॉलर के लिए, वो बहुत कम होता है. इतना ही फ़र्क होता है. उन्होंने तो इतने फ़र्क डाले हैं. कभी वो दे वर स्टेइंग इन लाइन, चाहे वो अब्बास अफरीदी थे, इवन मीर हमजा थे लास्ट नाइट.
I'm not sure कि आमिर जमाल खेलते हैं नहीं खेलते हैं, उनका क्या रोल होने वाला है, बिकॉज ही इज़ नॉट बॉलिंग वेल एट ऑल. ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा था, पीपल वर एक्सपेक्टिंग, वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग ओके दैट पाकिस्तान इज अ काइंड ऑफ गुड ऑलराउंडर एंड मे बी Jamal can do the job for Pakistan, but after that I think he got injured and Yep. he's such disappointing only at the moment. और पिछले मैच के अंदर भी जो उन्होंने बॉलिंग की है, वार्नर के चेहरे से साफ नज़र आ रहा था. लेट्स सी किस कॉम्बिनेशन से कराची उतरता है, और एक अच्छा मैच ज़रूर देखने को मिलेगा, फुल स्टेडियम भी हमें देखने को मिलेगा. और ये जो एंड वाले सारे मैचेस हैं ये क्राउड के लिए भी ज़बरदस्त होंगे, और एक क्योंकि सिचुएशंस इस तरह की हैं कि हर टीम को ज़रूरत है जीत की इस टाइम, क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशंस हैं. सो होपफुली एक अच्छा, जो भी जीते एक अच्छा मैच देखने को मिले, जो व्यूअर्स हैं ऑनलाइन और जो स्टेडियम के अंदर स्पेक्टेटर्स आके देखेंगे. So Ahmed भाई, let me put you in the hot seat. You know, if you are David Warner right now, और आपने जिस तरह से बात की, जो मसले हैं, स्पेशली एक जो चीज़ है वो, इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है कि आपके वो बॉलर्स जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है, ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्ट स्प्रेइंग द बॉल्स डाउन द लेग साइड, या बहुत स्ट्रेट लेग पे बॉल करना शुरू कर देते हैं. So as David Warner, yeah, as captain of Karachi Kings, you know, what conversations would you be having with your bowlers कि यार at least ball जहाँ पे मैंने आपको फील्ड दी हुई है. I think if you just particularly talking about Amir Jamal na, it's not the first game, last game. Not Amir Jamal, even Hassan Ali, even Mir Hamza. They need to talk about their margins. Hmm. Their margin of errors are really low. And at the same time, मुझे लगता है पिंडी के अंदर you cannot defend yourself. The more you'll defend yourself, you'll go for sixes, fours. You need to take wickets. If you go for runs, okay. They should hit you on balls जहाँ पे वो miss करें and you hit. अगर आप आमिर जमाल या कराची किंग के पिछले इनिंग देखेंगे, they were freebies कि जिस पे आउट का भी रिस्क नहीं थे. Exactly. तो मैं उनको कहूँ कि आप खाएं चौका, आप खाएं छिक्का, लेकिन ये जो हार्ड लेंथ्स हैं विकेट के अंदर, यहाँ से खाएं, दैट यू नो वो क्रॉस मारे, सो यू दे मिस, यू हिट, अदरवाइज यहाँ से वो मार रहा है आपको, इट्स ओके, आई एम विद यू. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हाफ बॉल ही करें इस तरह के बेल्टर पिचेस पे, ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट एंड वाइड करें, ऐसा नहीं है कि आप अंदर लेके आए यू मिस योर लाइन और पीछे वो हल्का सा बल्ला बाबर जिससे लगा रहे थे पीछे चौका हो जाए, ऐसा नहीं है कि नबी जो है ना वो लात पे ड्रिफ्ट हो जाए तो इधर बॉल करें. नहीं, जो भी प्लान हो, चाहे वो स्पिनर का चाहे फास्ट बॉलर का, वो इस तरह का चौका छिक्का खाना है, चाहे 10 खा लें, एक ओवर में 6 छोड़े 10 खाएं, उन बॉल्स पे खाएं कि जिस पे बैट्समैन को रिस्क लेना पड़े कि और बैट्समैन अगर रिस्क लेते हुए गलती करे छोटी सी भी तो आप आउट करें. एक ही चांस होता है आजकल की क्रिकेट में, स्पेशली पिंडी में जहाँ 250 स्कोर हो रहे हैं, 262 हो रहे हैं, कि यू मिस आई हिट, आप विकेटें लेने जाएं. जब भी आप किसी टीम को देखेंगे वो अपने आप को बचाने जाएगी, आप एंड अप देखना वो इतना स्कोर खा लेगी जितना आप सोच भी नहीं सकते. पहले ओवर से ही वो जो है ना डिफेंसिव हो जाती है टीमें. पिंडी के अंदर नहीं, दैट्स नॉट द राइट वे. आप जहाँ पे जितने ज्यादा बैटिंग पिच आते हैं ना, उतना ज्यादा आपने कोशिश करनी है विकेट लेने का. दैट्स योर ओनली चांस nowadays T20. That's quite an interesting point, Ahmed, जो आपने मेक किया, because I remember I was speaking to a team strategist once, और वो बता रहे थे कि whenever we see batting paradise, या जिस तरह से रावलपिंडी के venues है जहाँ पे high scoring matches होने होते हैं, so we look at the wicket and we tell our bowlers कि all right, it is expected that you will go at 10 and over, but make sure that you keep on hitting the right areas, and then we put onus on our batters कि आपने you have to make sure कि जितना भी स्कोर लग रहा है आप उसको चेज करें. एंड दैट इज़ अ कॉन्वर्सेशन दैट जो हम पाकिस्तान में शायद अभी भी तैयार नहीं है करने के लिए, अबाउट बैट्समैन्स रोल्स, और वो हमने बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है कि वो क्या वजूहात है क्या नहीं है. बट आई थिंक यू नो व्हेन इट्स अ वर्ल्ड कप ईयर नाउ, काफ़ी वर्ल्ड कप्स तो चले गए हैं, बट अब आगे के जो वर्ल्ड कप्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, दिस इज प्रॉब्ली द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन. जस्ट वांट टू ऐड यू वन मोर थिंग. जिस तरह हमने कहा ना, बैटिंग पिच के ऊपर देयर इज नो अदर चॉइस बट टू टेक विकेट. कोई बात नहीं, छिक्के चौके पड़ेंगे, सबको पड़ते हैं, आपको भी पड़ेंगे, लेकिन अगर आप विकेटें लेते जाओगे कॉन्स्टेंटली तो आप प्रेशर बिल्ड करते रहोगे. इसी तरह जैसे ही थोड़ा सा पिच के अंदर जब मूवमेंट होती है, या पिच स्लो होता है, या टर्न होता है, या उस तरह बॉल जा नहीं रहा, आउटफील्ड स्लो है, फिर आप सफोकेट करते हैं. हर पिच की एक अलग स्ट्रेटजी होती है अपनी स्ट्रेंथ्स को देखते हुए.
अब ये स्ट्रेटेजी पाकिस्तान में आपको लगता है कि इन करंट सिनेरियो में कोई बनाता होगा या किसी को इतनी नॉलेज? बनाने की बात भी नहीं है अहमद भाई, इफ यू टॉक अबाउट इट ना तो हर कोई नहीं कहेगा समझ ये तो पागल है। तो इफ यू टॉक अबाउट इट आप टीम से बाहर हो जाओगे हम्म। कि यार ये तो बोलता ही बहुत नहीं, है। इवन इफ यू टॉक अबाउट इट ऑन द मीडिया हाँ, तो सब पागल कहेंगे है। कि ये पागल और है। टीम के अंदर अगर आप अपना ओपिनियन रखोगे हाँ। तो सब कहेंगे तो बोलदा बोलदे नु कड्डो। सो एग्जैक्टली। ये ही सिनेरियो है पाकिस्तान का। कोई वजह है कि इन हम्म। जैसे लोगों के हाथ में क्रिकेट दी जाती है, बिकॉज यही सूट करते हैं क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान की क्रिकेट को। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट राइट लोगों के हाथ में होती, उन पे ट्रस्ट किया जाता, वो पाकिस्तानी क्रिकेट को भी कहां से कहां लेके गए होते। इसी तरह जब टर्न होता था अबू धाबी के अंदर तो इतना टर्न नहीं होता था, एक दुबई के शारजा। अंदर शारजा, तो वहां पे हम सफोकेट करते थे, डॉट बॉल्स, बिल्ड प्रेशर, देन मेक मिस्टेक, मेक श्योर करते थे कि अब ये गलती करे, अब ये बाउंड्री मारने जाए, क्योंकि वहां एक भी बाउंड्री मारना मुश्किल होती थी। तो डिफरेंट पिचेस के डिफरेंट ऑपोजिशंस के हिसाब से डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपको एज अ लीडर या एज अ मैनेजमेंट पता होना चाहिए, एंड देन आपके बॉलर्स के पास प्लान होने चाहिए उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर ये सारी बातें मैंने यहाँ बैठ के बितानी है तो मेरा ख्याल से मुझे कोचिंग कर लेनी चाहिए, कप्तान बन जाना चाहिए एक टीम का। वेल अहमद भाई, आपने वी आर जस्ट हेडिंग क्लोज टू द टॉस नाउ। आपने कहा था कराची किंग्स का पलड़ा भारी है, सो आई एम गोना गिव यू अ लास्ट चांस। यू आर गोना स्टिक विद कराची किंग्स फॉर टुडेस गेम? मैं कराची के साथ बिल्कुल स्टिक करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि इस्लामाबाद अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। राइट। लेकिन कराची का कम बॉलिंग से मुझे लगता है कि बैटिंग का तो इतना मसला नहीं है। साइफर्ट चला भी गया, इट्स ओके, वो डेविड वार्नर है, उनकी बैटिंग अच्छी है। लेकिन बॉलिंग में आई एक्सपेक्ट कि अब्बास जो है अच्छी बॉलिंग करें, नबी का ऑन सॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, हसन अली का जो है ना बुरे बॉल कम करना स्पेशली नए बॉल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ मार्जिन ऑफ एरर्स कम है, तो वो टक इन करके रखना होगा। आई वुड लाइक टू सी देम बॉलिंग वेल टुनाइट। अगर कराची किंग्स आज बॉलिंग अच्छी कर गया तो कराची किंग क्लियर फेवरेट्स होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहा रावलपिंडी में। इट वाज अ पिंक डे और इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑफ कोर्स दे वर होपिंग कि जो उनकी एक लूजिंग स्ट्रीक है वो टूटे, और बड़े स्टाइल में उन्होंने अपनी लूजिंग स्ट्रीक को तोड़ा है। 251 उन्होंने बैटिंग फर्स्ट स्कोर किया। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर पीएसएल के अंदर उन्होंने 250 से ज़्यादा रन्स लगाए, और कराची किंग्स एक्चुअली पूरा एक उनका कोलैप्स हो गया इन फ्रंट ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। कराची किंग्स को सिर्फ 204 रन्स करने थे टू मेक श्योर कि वो टॉप 2 पोजीशंस के ऊपर फिनिश कर सकें, लेकिन वो 204 भी नहीं कर सके बिकॉज ऑफ अ terrific performance from Islamabad United. So now as the group stands and now we have complete schedule in front of us, Wednesday को एक पहला क्वालिफायर खेलेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, द टॉप 2 साइड्स, और फिर उससे अगले दिन थर्सडे को एलिमिनेटर खेला जाएगा आर्च राइवल्स कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। द एक्शन नाउ मूव्स टू लाहौर जहाँ पे तीनों प्लेऑफ्स और फाइनल खेले जाएंगे। एंड लेट्स टॉक टू अहमद शहजाद नाउ आज के मैच के बारे में। व्हाट आर हिज थॉट्स? अहमद भाई, यू हैव बीन वेरी मच वोकल इन योर सपोर्ट फॉर साहिबजादा फरहान। आज कितने खुश हैं उनकी इनिंग्स को देख के? खुशी होती है जब भी कोई यंगस्टर परफॉर्मेंस करता है और ऐसा लगता है कि हाँ यार कि ये वो क्रिकेट है जो वक्त के लिहाज से खेली जा रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जा रही है, उसमें स्पेशली वो लड़का है जिसके साथ ज्यादतियाँ हुई हों। यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं साहिबजादा फरहान के शूज़ के अंदर होता तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता कि जिस तरह वो ट्रीट हुए हैं। पिछले इतने अरसे से वो पता नहीं कितने टूर्स पे गए, लेकिन वहाँ पे उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया गया, उनको उनके नंबर पे नहीं खिलाया गया। इवन दो के डेड रबर्स भी आ जाते थे, हमारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं सीरीज़ हारे भी होते थे तब भी इनको नहीं खिलाते थे, और फिर एक मैच इनको दे दिया जाता था वो भी नंबर 5 पे। उसके बाद इनके लिए आवाज़ हम उठाते रहे। ये वो लड़का है जो डोमेस्टिक में टॉप कर कर के थक गया है बड़े से। ये खाली यहाँ पे उसने परफॉर्मेंस नहीं की है, ये डोमेस्टिक 4 डे में भी परफॉर्मेंस करते हैं, पाकिस्तान कप में भी परफॉर्मेंसेस करते हैं, फिर आके आप पीएसएल में परफॉर्मेंस कर रहे हैं 2-3 साल से रेगुलर, और फिर इनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। हमने तो यही सुना था कि जब किसी प्लेयर को बनाना होता है तो उसको होम सीरीज दी जाती है, प्रॉपर चांस दिया जाता है। जिस तरह हमारे सीनियर प्लेयर आज तक ये नारा लगाते हैं जी हमें फीयर ऑफ फेलियर है, तो किसी और का तो उन्होंने ख्याल नहीं किया कि उसको किस तरह डेवलप करना है, उसको भी खिलाना है। लेकिन वो लड़के ने जो है ना, ठीक है उसका एक सीरीज टू फॉरगेट एक्सपीरियंस ज़रूर उसको मिला होगा ऑस्ट्रेलिया से, उसको ये कह के निकाल दिया गया कि ये तो इंटरनेशनल मटीरियल ही नहीं है। एक पूरी मुहिम चलाई गई, वो लेबल लगा देती है ना, ठीक है, पता नहीं कौन लोग हैं वो। उसके बाद वो मतलब शर्मिंदा भी नहीं होते जब वो इंसान जाके दोबारा से। मुझे एक चीज़ इसकी सबसे अच्छी लगी जो कि बाकी कम लोगों में होती है, ये डिटर्मिनेशन, एक जो ग्रिट है
नो मैटर व्हाट आई विल कम बैक। इसकी जगह कोई और होता, बड़ा आसान था उसके लिए कि यार ये तो सिस्टम ही ऐसा है, यहाँ तो सारों के साथ यूं होता है, हमसे पहले वाले भी यही रो रहे हैं टीवी पे बैठ के, हमारे साथ भी यही, और हमारे अपने ही शहर के लोग हमें शायद जो है ना इस तरह करें। लेकिन नहीं, ये इसने 3 महीने बाद पिक्चर अपलोड की, इतना इतना डंड दिखाया, आई वाज रियली हैप्पी कि यार ये वो लड़का है जो हार नहीं मानेगा। उसके बाद पाकिस्तान कप हुआ यार, उसने 3 सेंचुरियां की, नेशनल टी20 में 3 सेंचुरियां खड़काई हैं यार, और क्या खेला है उसमें भी। और उसके बाद यहाँ पे भी आप देखें, ये पिक नहीं हुआ था, ये वो लड़का है हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये पहले हाथ में पिक नहीं हुआ पीएसएल में। ये जो अभी आप इसको खेलता हुआ देख रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर पूरे पीएसएल में उठा के देखेंगे इंक्लूडेड फॉरेनर प्लेयर्स, सबसे खूबसूरत इनिंग्स जो हैं ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये आपको साहिबजादा फरहान की नजर आएगी। ये हमारी फर्स्ट चॉइस पिक नहीं था, मजबूर किया उसने, 3 सेंचुरियां करके उसको पिक किया गया। और जब वो लड़का अब आके हाईएस्ट स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंसेस कर रहा है, मेरा दिल को बहुत खुशी मिलती है, बिकॉज ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। अल्लाह करे कि ये जो इसकी हंगर है, ये भूख है, ये यहाँ ख़त्म ना हो, और अल्लाह इसका साथ दे जब ये पाकिस्तान की तरफ से भी जाके खेले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लक फैक्टर होता है। जितनी भी आपने मेहनत की हो, जितने भी आप अच्छे प्लेयर हो, इंटरनेशनल लेवल पे जाके आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, अपना लोहा मनवाना पड़ता है। और लेकिन दूसरे मुल्कों के अंदर या दूसरे प्लेयर्स के साथ मैनेजमेंट थी, कोचिंग स्टाफ थे, कप्तान थे, इनके साथ शायद कोई ना हो, इनके साथ लेकिन अल्लाह ज़रूर है। इंशाल्लाह अगर ये अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो गए, इस तरह की 1 से 2 इनिंग इन्होंने खेल ली जो ये पीएसएल में खेल रहे हैं, इनको कोई रोक नहीं सकेगा। बाकी फिर अपना डाउनफॉल जिस तरह बाकी खुद लेके आए हैं, मेहनत छोड़ के, बैटिंग कोचेस की ना सुन के, क्रिकेट से बड़ा अपने आप को समझ के, फिर ये वही हरकतें करेंगे तो नीचे आएंगे। लेकिन ये इस तरह का प्लेयर है शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर, अगर इसने जाके 1-2 इनिंग्स खेल ली तो ये जो है ना अवाम को अट्रैक्ट करेगा। वेल, लर्निंग नेवर स्टॉप्स एज अहमद शहजाद सेड। और अभी ड्यूरिंग द मैच मिड इनिंग्स में जब इन्होंने फ्लैश इंटरव्यू किया तो ज़ैनब अब्बास ने इनसे पूछा कि आपने जिस तरह की पावर हिटिंग की है, टेल अस के आप किस तरह से प्रैक्टिस करते रहे। तो बता रहे थे कि पेशावर में ओपन ग्राउंड में ये प्रैक्टिस करते हैं फॉर इस पावर हिटिंग, रेंज हिटिंग करते हैं, जिसने उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू इस्लामाबाद यूनाइटेड एज वेल, क्योंकि बाकी 5 फ्रेंचाइजेज़ भी थी, उन्होंने शायद आपके जिस तरह से साहिबजादा फरहान को पिक किया या मोहम्मद शहजाद को पिक किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस, गाजी गौरी को पिक किया, शायद उन्होंने उस तरह से नहीं किया। सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू देम एज वेल फॉर दिस। इस्लामाबाद यूनाइटेड की ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं, सो टुडे वाज क्वाइट अ गुड डे फॉर देम। देयर कैप्टन मेड अ कमबैक एंड स्कोर्ड 42 of 19। अहमद भाई, व्हाट डू यू मेक ऑफ शादाब्स इनिंग्स? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उन पर रहता है कि क्या ये ऑलराउंडर हैं, नहीं है, बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। हाउ डू यू सी हिज इनिंग्स टुडे? और ये जो इस दफ़ा का पीएसएल उनके लिए जा रहा है। नहीं, पहले भी जो थे, जब पहले 5 मैच खेले हैं उसमें वो डिसेंट परफॉर्मेंस कर रहे थे, और आज भी इंजरी के बाद आके खेलना मुश्किल होता है। अच्छी चीज़ ये लगी कि उनका इंटेंट था, ठीक है, उन्होंने पहली बॉल पे ही आके सामने छिक्का मार दिया। सो दैट शोज कि ही इज रेडी, ही इज प्रिपेयर। इतना ही काफ़ी होता है। स्कोर उन्होंने इतना ही किया, मतलब स्टेज सेट था, नीचे एक इनिंग में अपनी 40 कर दिया 20 बॉलों पे, दैट्स वेरी गुड। पीएसएल के हिसाब से यहाँ तक चीज़ें ठीक है, लेकिन शादाब खान का इस टीम के इस्लामाबाद के अंदर एक इन्फ्लुएंस्ड है, एक्सपीरियंस कैप्टन है इस्लामाबाद के, प्लेयर्स उनकी बात सुनते होंगे, उन्हें पता है कि यार चाहे पाकिस्तान टीम में है नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद का ये थंब है, इसका यहाँ तोती अभी बोल रहा है, तो वो सुनते हैं बात उसकी। और उसके आने से ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ा है। आज पता नहीं क्या फ़र्क पड़ा है, उनके आने से फ़र्क पड़ा है या एलेक्स सेल्स के आने से फ़र्क पड़ा है, हमें नहीं पता है। लेकिन टॉप ऑर्डर ने, हमने आपको पहले भी बोला था कि आप देखिए, याद रखिए, हमने 2 चीज़ें बोली थी। एक हमने बोला था कि इस्लामाबाद ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। दूसरी चीज़ हमने बोली थी कि इस्लामाबाद जीतेगा, जब भी जीतेगा इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीतेगा, अभी जो इन्होंने हाल कर लिया। और आज आप देखें कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी आपके ऊपर, दोनों ओपनर्स ने मैच साइड पे कर दिया था, बिल्कुल साइड पे हो गया। तीसरी बात हमने की थी कि हो सकता है बाकियों के लिए नहीं, लेकिन ये जो ब्रेक आया, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज बन के आए कि ये अपना कॉम्बिनेशन जो इन्होंने खुद ही अपने हाथ से ख़राब किया था, शायद वो किसी बेहतर नतीजे पे पहुंच सके। और आज देखने में मिला है कि एक बेहतर टीम परफॉर्मेंस नज़र आई है। जीतते हैं तो आप इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन हमने आपको ये बोला था कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है आपको जितवाएगी, और उनके ओपनर ने मैच साइड पर कर दिया था दोनों। एलेक्स सेल्स की अगर आप बात करना चाहें तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप किसी टूर्नामेंट का पार्ट नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ होती है कि प्रेशर नहीं होता कि यार अच्छा बस 2-3 मैच रह गए। एज अ प्लेयर ये होता है कि आप पूरे टूर्नामेंट के लिए कहीं जाते हैं ना, तो एक अनदर माइंडसेट चाहिए होता है।
जब आप यूं आते हैं तो एक पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव ये होता है कि आप कहते हो यार आई जस्ट हैव टू गो एक्सप्रेस माई सेल्फ, किसी से मुझे ज़्यादा बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कोई इतना किसी को दिखाना है, जाऊँगा जो मुझे रोल दिया गया वो करने की कोशिश करूँगा। True. उन्होंने वो किया आके, लेकिन मुश्किल ये होता है कि कंडीशन का पता नहीं है, टीम में क्या बॉलिंग खेल रही है वो पता नहीं है, किस टीम के पास कौन कौन से बॉलर हैं ये पता नहीं है, वीक बॉलर कौन सा ये पता नहीं है। पूरा टूर्नामेंट जब आप फॉलो कर रहे होते हैं ना, आप देख भी रहे होते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है अगली टीम की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का। इस सिनेरियो में ये नहीं होता। इस सिनेरियो में बस आप आते हो, आपको पैसे मिलते हैं और कहा जाता है ये करो। और क्या किया है उसने तो ना सिर्फ देखे, ये होता है कि जिस तरह हम बार बार नागी भाई अब इस बारे में बात करते हैं कि ये एंकर रोल खत्म होने चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री जो गुजर गई है उसको भी निकाल दें, नहीं तो ये क्रिकेट तबाह कर देगी। ये जो लोग कहते हैं ना कि हाँ उसका स्टाइल ऐसे है कि वो रोक रोक के खेलता है, भाई स्टाइल ऐसा है तो उसको टेस्ट में खिलाएं। क्योंकि वनडे के T20 के अंदर तो हम देख रहे हैं कि साहिबजादा से बचता था बॉलर तो आगे हेल्स पकड़ लेता था, हेल से बचता था बॉलर तो साहिबजादा पकड़ लेता था। मैं ही दोनों ने साइड पे कर दिया। और आप देखें कि इस सिनेरियो के अंदर मिडिल ऑर्डर के लिए कितना आसान होता है चीजें करना, उसको प्रॉपर टाइम मिलता है, इनफ बॉल मिलते हैं। और अगर चांस लेते हुए आपके ओपनर्स आउट भी हो गया तो क्या बाकी टीम नहीं बनानी है आपने? बाकी क्या करने हैं? सैर करने थोड़ी है। उनको लेट देम एक्सप्रेस ना, उनको भी तो मैदान मिले कि हाँ यार 4 मैच तुम्हारे पास भी हैं, कोई बात नहीं, फेलियर भी आएंगे, बट एक्सप्रेस योरसेल्फ, इनफ बॉल मिले। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर ये बात मानने से लोग कासिर थे। थैंक गॉड, शुक्र अल्लाह का कि अब आके लोग इस बात को मान रहे हैं और उस पर काम हो रहा है कि एंकर जो रोल है T20 के अंदर बैट्समैन का कि लंबा जाना है, ये बिल्कुल खत्म है इस टूर्नामेंट के अंदर भी। फिर ना कहना कि मैं मिसालें नहीं देता, मिसालें दे के बता रहा हूँ। इस टूर्नामेंट के अंदर भी जो 2 टीमें ये करती रही, आप उनका हाल देख लें, बॉटम पे फिनिश कर गई हैं। जिन 2 लोगों के रोल कप्तानों के ये थे कि हम पूरा खेलेंगे और हमारे आसपास आएंगे और मारेंगे, एक मुल्तान सुल्तान, एक पेशावर, वो ये हो गया। इसलिए मेरे भाई यही है मॉडर्न डे क्रिकेट। और आज इन दोनों की क्रिकेट देख के आई एम श्योर क्राउड को तो इन्होंने एंटरटेन किया ही होगा, बट यंगस्टर्स बहुत सीखते हैं। आपके जो डग आउट के अंदर प्लेयर बैठे होते हैं, जब वो इस तरह की इनिंग देख रहे होते हैं लाइव पास ड्रेसिंग रूम में बैठ के, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये क्रिकेट है जो मैं चाहता हूं कि हमारे पाकिस्तान के बच्चे सीखें और देखें। ये वो क्रिकेट है जो वो देखेंगे, सीखेंगे, खेलने की कोशिश करेंगे, जिसका पाकिस्तान को आने वाले टाइम में फायदा पहुंच सकता है, ना कि सिंगलें डबलें करना, ना कि अपने लिए खेलना। सो आई थिंक ओवरऑल एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अच्छा लगा उनको देख के कि ये अपने मोजों में वापस आए हैं और पहले 6 मैचेस जिस तरह उन्होंने खेले थे उसी तरह ये मैच खेला है। और लगा ही ऐसा ही है कि शायद वो जो 3-4 मैच थे वो जो बुरे, वो शायद आए ही नहीं थे। ऐसे ही लगा कि वो एक विनिंग स्ट्रीक में ही चल रहे हैं। Yeah, that's quite interesting observation कि आज के मैच के बाद लगा कि शायद वो 3-4 बुरे मैच आए ही नहीं थे। So अहमद भाई, now into the playoffs, लाहौर अब टूर्नामेंट आ रहा है एंड वी हैव सीन कि ऑफ कोर्स जिस तरह से इस्लामाबाद ने क्रिकेट खेली है आज, इट इज़ वेरी वेल सूटेड टू द कंडीशंस इन रावलपिंडी। बट हमने लाहौर में देखा था कि थोड़ा सा स्पाइस भी था। ऑफ कोर्स वो एक ऑस्ट्रेलियन विकेट, ऑस्ट्रेलियन सॉइल की भी बात होती थी जहाँ से बॉल बाउंस भी कर रहा था, तेज़ भी निकल रहा था। डू यू थिंक इनकी टेम्पलेट सक्सेसफुल होगी इन लाहौर? एनीवेयर aggressive mindset जो है it's needed anywhere. The only thing you need to work on is your pick and choose, your shot selection. Right. सिर्फ आपको थोड़ा सा वहाँ पे एक चीज देखनी है कि शॉट सिलेक्शन के कौन से शॉट मारने हैं, कौन से नहीं, बस ये आपको देखना है। अदरवाइज आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ ना, टिम साइफर्ड मॉडर्न डे क्रिकेट है, ठीक है। न्यूजीलैंड अभी गई हुई थी पाकिस्तान, वहाँ पे एक मैच में बारिश हो रही थी तो मैच पे पिच पे कवर से ये वो टॉस भी जो है ना हार गया न्यूजीलैंड, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने जीत के बॉलिंग की। तो एक फ्लैश इंटरव्यू हुआ साइफर्ड का, उन्होंने पूछा होस्ट ने, उसने कहा यार टॉस भी आप हार गए हैं, ओवरकास्ट कंडीशन भी है, बारिश भी हुई है, पिच भी ग्रास है, एक मॉइस्चर भी लग रहा है, आपकी जो है ना हिकमत अमली क्या होगी? अगर ये क्वेश्चन हमसे हुआ होता 4-5 साल पहले या अभी भी किसी हमारे प्लेयर से हुआ था, उसने ये कहना था, हालांकि वनडे मैच था, T20 भी नहीं था, उसने कहना था आई विल ट्राई टू सी ऑफ द न्यू बॉल और धूप लगने का इंतजार करूंगा पिच सूख जाए। लेकिन नहीं, उसने कहा मैं अटैक करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि बॉलर को डिस्ट्रैक्ट करूं और सेटल ना होने दूं और अपनी टीम को एक अच्छा स्टार्ट दूं जिसपे वो कैपिटलाइज कर सके। तो दैट सम्स अप द थ्योरी ना। आप कहते हैं आपने दुनिया के साथ चलना है, ये तो नहीं ना कह सकते कि उनका सिस्टम खराब है, क्योंकि उनकी तो पॉपुलेशन ही इतनी सी है, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इतनी सी।
न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन इतनी सी, लेकिन उसके अंदर से अगले अपना सिस्टम बना के बैठे हुए, तो किसी वजह से बना के बैठे हुए ना, इसका मतलब है कि उनका माइंडसेट ठीक है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट को खेलते हैं, उस तरह का अपना पॉलिश करते हैं लोगों को। तो आप हजार बातें करें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनका सिस्टम खराब है, उनका माइंडसेट खराब है। तो ये माइंडसेट है उनके प्लेयर्स का, और आपके प्लेयर्स का माइंडसेट क्या था अभी तक कि जी धूप लगेगी तो बॉल सर्वाइव करेंगे, तो जी ये हो जाएगा, इतनी देर में आधी टीम फड़क जाती थी। सो यही एक माइंडसेट है, यही टेम्पलेट है, साहिबजादा फरहान हो, एलेक्स हेल्स हो, या शादाब खान हो, या गॉन मुनरो, जो भी है, खेलना इसी तरह ही है, लेकिन हर सरफेस के हिसाब से कुछ शॉट्स होते हैं, कहाँ को हवा चल रही है, कौन सी बाउंड्री छोटी है, कौन से बॉलर को पिक करना है, कौन से शॉट लगेंगे, यहाँ वाले बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, जैसे ही मेरे एरिया में आएगा मैंने पूरा घुमाना है। ये चीजें आप जरूर होते, लेकिन जो इंटेंट, जिसका मतलब होता है इरादा, वो हर बॉल पे वही रहता है कि आया और गया। बस यही चक्कर है। So Ahmed भाई, let's talk about Karachi Kings bowling now. एक बॉलिंग उनकी ऐसे लग रहा है जिस तरह कि ये वीक पॉइंट बनता जा रहा है. When they started off in Karachi, तो शुरू में उनकी बॉलिंग was doing very well in conditions which were suiting them. But आज भी अगर आप देखें, उससे पहले भी अगेंस्ट पिशावर ज़ल्मी आप देखें, उनकी ज़रा बॉलिंग इट डजेंट लुक के वो आपको कोई भी टोटल रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, या अगर आपने अच्छा टोटल भी लगा दिया तो इट विल बी एबल टू कंटेन दैट टोटल. काफ़ी वो जिसे कहते हैं बीच में, यू नो, एज वी डिस्कस्ड इन द प्री शो एज वेल, बॉलर्स विल स्टार्ट स्प्रेइंग डाउन द लेग. क्या हो रहा है ये कराची की बॉलिंग के साथ? No, I'm not too sure. They were bowling well. It's not about कि वहाँ पे zip थी. It's about the areas were good, Right. which they were hitting. शायद later down the order bodies fatigued हैं. शायद ये जो पिछले 2 मैच खेले हैं ये स्पेशली कराची किंग इतनी बुरी बॉलिंग नहीं पहले कर रहे थे. रिसोर्सेज तो शुरू से ही इनके कम थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब इनकी जो बॉलिंग है वो अच्छे एरियाज में ही नहीं कर रहे हैं और इतने फ्रीबीज दे रहे हैं जहाँ मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है. अब आमिर जमाल को आप देखें यार, मतलब कि मुझे नहीं समझ आ रही वो बॉलिंग क्या कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है वो चीखे मार रहे हैं ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स के ऊपर. दैट्स नॉट द वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. आई मीन इट डजंट रियली लुक गुड. फॉर यू गॉट टू बोल वेल, यू नो, आपका एक जो जॉब है, आप अच्छे एरियाज पे बॉल तो करो. आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी बुरी बॉलिंग की फ्रस्ट्रेशन किसी और पे नहीं निकालते हैं. सो आमिर जमाल हैज़ बीन रियली डिसअपॉइंटेड थ्रू आउट दिस सीरीज़ PSL का देखेंगे, बिकॉज वी रियली वांटेड कि यार एक ऐसा ऑलराउंडर आए जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व करे और इनमें पोटेंशियल लगी. लेकिन उसके बाद जितनी भी क्रिकेट खेले हैं इंटरनेशनली भी, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ खेले, चाहे वो ODIs खेले, उसके बाद जो अब ये PSL में भी आ रहे हैं, इनका ग्राफ बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है. और फिर आप देखें कि हसन अली भी पैचेस में अच्छे बॉल कर रहे हैं. इवन दो इन पिचेस के ऊपर भी देखें, पैचेस में वो अच्छे बॉल करते हैं, लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि अपने ओवर का जो पहला बॉल वो कर रहे हैं ना, उस पर बड़ा कैजुअल अप्रोच के साथ कर रहे हैं, और एक आखिरी बॉल भी बड़ा कैजुअल अप्रोच के साथ कर रहे हैं. व्हाट वीव अंडरस्टूड एंड लर्नड दैट द फर्स्ट बॉल एंड द लास्ट बॉल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और इनको ज़्यादातर बाउंड्रीज जो हैं इन्हीं दोनों बॉलों पे पड़ रही हैं. बीच वाले बॉल जो है ना, ये बीच में ठीक कर देते हैं. तो आई थिंक इस पर उनको थोड़ा सा काम करना है, स्पेशली ये जो पंजाब वाली साइड पे मैच है. और उसके बाद खुशदिल शाह को आज थोड़ी सी पिटाई हुई है. ओवरऑल खुशदिल शाह अच्छी बॉलिंग कर रहे थे. खुशदिल शाह से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी किसी को भी कि वो इस तरह का रोल प्ले करेंगे कराची किंग के लिए. उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने बैटिंग के साथ भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की और 3-4 क्रूशियल इनिंग्स खेली हैं. एट द सेम टाइम he has been bowling really well. बट कहीं ना कहीं इज़ नॉट अ जेन्युइन स्पिनर. आज उनकी भी काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई है. दो के उन्हें कुछ शॉट तो बड़े ज़बरदस्त मारे हैं एलेक्स हेल्स ने, कुछ गंदे बॉल भी कर रहे थे. फिर यही होता है जब आप पार्ट टाइम बॉलर होते हैं, आप पे जब प्रेशर पड़ता है तो आप उसके अंदर ना प्रेशर में आते हैं, चोक करते हैं, फिर आपके पास आंसर्स कम रह गए थे. आज जब उन्हें शुरू में पिटाई लगी खुशदिल का, उसके बाद उनके पास आंसर्स कम थे और वो फिर बुरे बॉल भी उन्होंने प्रोवाइड किए. तो आई थिंक ऑल इन ऑल कराची जो एक चीज़ इम्प्रूव कर सकता है वो ये, ठीक है यही टीम है, यही प्लेयर होंगे, ऑब्वियसली अगर होते कोई तो वो खेल रहे होते. दे कैन टॉक टू द बॉलर्स अबाउट द ग्रुपिंग्स, लाइक छोटी छोटी चीज़ें कि यार मार्जिन ऑफ एरर यहाँ कम है, पहले बॉल से स्विच ऑन आना है, वार्म अप आना है, और आके आपने 3 डंडों में बॉलिंग करनी है, 3 विकेटों में बॉलिंग करनी है, दैट्स ऑल. एंड यू गॉट टू फिनिश वेल टू. एक पहला बॉल और आखिरी बॉल, ये दोनों बॉलों पे ख्याल रखना है. और फिर आमिर जमाल की कोई रिप्लेसमेंट अगर इनके पास पड़ी है, चाहे वो 2 रिप्लेसमेंट करनी पड़े, क्योंकि जो ऑलराउंडर होता है उसको आपको 2 करनी पड़ती है, लेकिन बेहतर यही होगा जिस फॉर्म के अंदर वो हैं, जितना वो फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, कराची किंग को जो मस्ट विन गेम्स होगी जो आने वाली हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम पड़ सकती है. बिकॉज आप
बैट्समैन से हर रोज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 250 चेस करें। आपको एक आधा मैच तो है बॉलिंग से भी जो है ना इस तरह के आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि बैटिंग पे कम प्रेशर हो। अदरवाइज कराची हैज़ बीन लुक्ड सॉलिड। Yeah. So with that, we'll end our today's show. The group stage is done of the HBL PSL X. We will now see you a day on the day after tomorrow for the qualifier between the top two sides. Until then, it's goodbye from our side.